Okay, thank you for the invitation, and it's so overwhelming seeing such young people in the audience, and I am myself feeling very young. So, I have a question to you all. How is malaria spread? Anybody? Yeah, just be loud. Biting of mosquito, right? And so when you are standing outside in the evening in the lawn, some people will have a lot of mosquitoes on their body, while few will not have mosquitoes on their body. And when we were young, what we heard from our elders is कि इसका खून ज़्यादा मीठा है, and that is why a lot of mosquitoes are around his body, right? So my lab yeah, please, thank you. You got full marks. So my lab in CDRI is working on the human malaria parasite. Now this is a very interesting pathogen, intracellular pathogen. It lives in the mosquito, it fights with the mosquito microbiota, survives there, then it comes in the human body, lives in the liver quietly, and then it comes in the blood, it grows in the blood, and then it forms gametes, and then taken up again by mosquito. Such complex life cycle traverses different hosts. One is a warm-blooded human host, and the other one is the cold-blooded mosquito vector. Now the same mosquito is also transmitting viruses. Now can you tell me which viruses? What is endemic in UP? Yeah? Somebody from that corner said something? Dengue, we have chikungunya, we have JE, encephalitis, which is also endemic in Gorakhpur. So the same mosquito is transmitting both a protozoan parasite as well as a virus. This is fascinating, isn't it? And we till now do not understand how does these co-infection exist in the mosquito vector, because we have overlapping phases of transmission cycle. The other problem with this mosquito, this pathogen, intracellular parasite, is that it is gaining resistance. And as we hear from other fields of microbiology also, that drug resistance is a problem. So my lab is trying to understand how the parasite is able to survive under different stress conditions. What are the mechanisms which are unique to the parasite, which gives a competitive edge over the human host or the mosquito vector? And also my lab is involved in drug screening. We are looking at molecules which can be effective against the drug-resistant parasite. And as you know, that drug discovery is not an easy task. It takes 10 to 15 years and only with 1 to 2% success rate. So why I'm telling you this is because you in the audience, you people are from different diverse backgrounds, right? And the country's hope is the young generation, because they are dynamic, they are energetic, and they have idea of interdisciplinary science, because the avenues for interdisciplinary science is a lot. So my team works with medicinal chemists, it works with pharmacologists, we work with formulation guys, we work with doctors, and that is how with this diverse team we gain a lot of knowledge. And the principles of infectious biology is the same, whether you apply it for parasitology or you apply it for bacteriology or mycology. So, and the problems of drug resistance are the same across different infections. So I would be happy to answer questions if you have something and if you would like to know more in details what we are doing at CDRI. एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो पैंडमिक के टाइम पे शुरू हुई थी. मेरी लैब, जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल रिसर्च भी करती है, ड्रग डिस्कवरी भी करती है, मैं पार्टिसिपेट करती है. बट ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2020 में, जैसे ही पैंडमिक आया. एंड आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे रियल टाइम PCR किट्स भी बहुत मुश्किल से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड बीच में टेस्टिंग भी रुक गई थी बिकॉज वी डिडंट हैव इनफ किट्स. एंड उसी टाइम ही गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल आया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का.
एंड उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ के लिए कॉल आया था। बहुत लोगों ने डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स लिखे, हम लोगों ने इट जस्ट हैपेंड कि उस टाइम पे हम लोग लॉकडाउन में कैंपस में बंद हो चुके थे एंड दूर दूर खड़े होके हम लोग खुद सोच रहे थे कि कैसे हम अपनी नॉलेज को इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड तभी हम 3 कॉलीग्स, एक मेडिसिनल केमिस्ट, एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट और एक मैं, मतलब हम 3 लैब्स मिली और हमने वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इंडिजिनस फ्लोरेसेंट डाइज एंड क्वेंचर। जो RT-PCR टेस्ट आप लोग कोविड टेस्टिंग में आपको पता चला होगा कि आप कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, तो वो जो रिएजेंट्स जो होते हैं वो हमने खुद लैब में बनाना शुरू किया, नो हाउ डेवलप करा, वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। एंड ये सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस टाइम एक छोटी सी इंडस्ट्री ने हमारी कैपेबिलिटी में फेथ दिखाया। सो एज राहुल इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री सेक्शन, सो क्या होता है कभी कभी एकेडेमिया और इंडस्ट्री में ना फेथ नहीं डेवलप होता है, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है, ऑल्दो वो दोनों में कैपेबिलिटीज़ होती है, बट आप जैसे जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेल करते हैं। उस लॉकडाउन के टाइम पे जब रिएजेंट्स नहीं थे, वो छोटी सी इंडस्ट्री ने हमें फेथ दिखाया, हमें जो मिनिमल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड करे, एंड देन वी डेवलप द टेक्नोलॉजी, वी डिड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वी हैव फाइल्ड अ पेटेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल पेटेंट। एंड वो जो जर्नी थी वो बहुत लर्निंग वाली जर्नी थी, बिकॉज हमने ज़ीरो से स्टार्ट करा था और हमारी टीम में हमारी लैब्स थी विच द मोमेंटम वॉज प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। बेचारे स्टूडेंट्स ने वो 2 साल, नो सैटरडे नो संडे, वी ऑल वर इन द लैब, तो हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा वीकडे है, आज संडे है या मंडे है, बट दे वर सो ऑप्टिमिस्टिक। और जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल्स फेल हो रहे थे, हमारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स ने हार नहीं मांगी। तो मैं सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे टीम मेंबर्स थे, और हमारी इंडस्ट्री पार्टनर को देना चाहती हूँ। तो कैसे एक लैब की एक्सपेरिमेंट एक टेक्नोलॉजी में जाती है, तो टीम बिल्डिंग एंड ट्रस्ट, फॉर मी दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। मुझे लगता है बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स की ज़रूरत है जहाँ पे डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, फार्मास एंड ऑल्सो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड करते, दे ऑल हैव टू कम टू वन टेबल एंड दे हैव टू सिस्टमैटिकली वर्क टुगेदर। जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं, एटलीस्ट फॉर वी आर फॉर्चुनेट इन द केस ऑफ मलेरिया, हम लोगों के पास वी हैव अ कंसोर्शियम मतलब मल्टीपल पीपल आर वर्किंग इन इट, दिस इज़ मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर। हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में रिसर्च लैब्स हैं, केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, हम लोग वी हैव ऑनलाइन मीटिंग्स जहाँ पे हम नो हाउ शेयर करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स शेयर करते हैं, प्लस अगर कोई डेटा एक लैब में किसी मॉलिक्यूल के लिए जनरेट हुआ है तो उसका क्रॉस वैलिडेशन दूसरी लैब में भी होता है। उससे क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में दम है तो वो आगे लेकर जाते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल प्रॉब्लमैटिक है तो उसको उसी टाइम ही ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। जैसे कहा जाता है ड्रग डिस्कवरी में फेल अर्ली इज़ बेटर, बिकॉज इफ़ यू फेल अर्ली यू डू नॉट वेस्ट योर रिसोर्सेज एंड टाइम on a failed molecule, you utilize that time and resources for a better molecule. So इसीलिए मुझे लगता है कि एक जो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ ट्रस्ट, wherein people from different backgrounds they work together. The pharmaceutical company also comes on together with academic institutions and philanthropic organization. जैसे हम लोगों ने देखा है टाटा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, गेट्स फाउंडेशन फंड करते हैं, आजकल अभी फाइजर एंड ग्लैक्सो इज़ ऑल्सो फंडिंग। सो ऑल ऑफ देम अगर दे कम ऑन द टेबल, बट सिस्टमैटिक एफर्ट्स चाहिए। वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस विच ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर ऑन वन टेबल सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट ऑप्टिमली। दीज आर माई थॉट्स। इम्यूनिटी सिर्फ खाने पीने से नहीं होती है, इम्यूनिटी आपके एनवायरनमेंट से भी होती है। इम्यूनिटी अगर आपको इन्फेक्शन है और आपने अपनी दवाई का कोर्स पूरा कंप्लीट करा है,
दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जैसे वन हेल्थ कहा जाता है ना, उसमें आपको ये पता होना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एनिमल्स, हमारे जो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में आते हैं, जब तक हम उनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हमें इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, ऑफकोर्स जो डॉक्टर जोशी ने कहा दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा वी नीड टू नो आर एनवायरनमेंट, आर पैथोजेंस ऑल्सो, कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है सर. हम अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दवाइयाँ हम गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सो ऑल दैट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, उसके लिए आपको साइंस का स्टूडेंट या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को टैम्पर कर रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी कैसे ख़राब हो रही है. अगर हम गलत तरीके से दवाइयाँ को हम वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट वाटर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, उससे कैसे हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है, और हम पैथोजेंस को कैसे और ड्रग रेजिस्टेंट बना रहे हैं. सो इट ऑल कम्स ऑन वन हेल्थ.